Assalamu alaikum students. I hope you are doing well. Today we will be talking about lecture number 31 of your course Positive Psychology. हस्बे मामूल पहले पिछला लेक्चर रिव्यू करेंगे और उसके बाद आज के लेक्चर के बारे में बात होगी. आपको याद है कि हम पिछली दफा कौन सा टॉपिक पढ़ रहे थे? Yes, you are right. We discussed the state of flow in the previous lecture. And as I told you that the father of flow theory is Csikszentmihalyi. And in the previous lecture, we started about flow models that have been presented firstly by Csikszentmihalyi और उसके बाद हमने current model की भी बात की थी. So the first model which Csikszentmihalyi presented indicated that there should be a balance between the skills of a person and the challenge that is associated with a particular task or situation. So the ideal thing is when the person's skills and the challenge, both of them are very high. It means that the challenge is great, the situation is demanding a lot of work and creative thinking maybe from the person, and at the same time individual has great capabilities to deal with the situation. तो ये एक ऐसी सिचुएशन होती है जब चैलेंज भी ज़्यादा होता है और स्किल्स भी उसके साथ मैच करती हैं. तो हम ये कह सकते हैं कि द रेशियो बिटवीन स्किल्स एंड चैलेंज डिटरमिन वेदर द पर्सन विल बी एक्सपीरियंसिंग अ फ्लो स्टेट और नॉट. एक एवरेज चैलेंज के साथ एक एवरेज क्वालिटी ऑफ कैपेबिलिटी नॉर्मली डज नॉट लीड अस टू द फ्लो स्टेट. यानी एक एवरेज डिफिकल्टी लेवल है किसी काम का और आपकी कैपेबिलिटी भी वैसे ही है तो फिर फ्लो स्टेट क्रिएट नहीं होती. एंड रिमेंबर व्हाट वी मीन बाय फ्लो स्टेट. फ्लो स्टेट इज रिलेटेड विद द डीप एंगेजमेंट एंड योर इन्वॉल्वमेंट विद द वर्क दैट यू आर डूइंग. एंड व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ फ्लो स्टेट? क्या फायदा होता है कि हम एक काम में इतने ज्यादा इन्वॉल्व हो जाएं? The thing is that it extends our capabilities, and when our capabilities are extended, then our self-esteem is boosted. और जब हमारी self-esteem ज़्यादा हो जाती है, तो फिर एक cycle start हो जाता है कि we think we are capable to do more and more of challenging work. और इस तरीके से इंसान जो है उसका काम improve होता है. So it means that there are lots of benefits associated with flow state. अब ये भी हमने बात की थी कि what are different pathways to flow state. हम किस तरह एक flow state तक पहुंच सकते हैं? So the answer was that we should find out these kind of activities which are matched with our temperament and skills. और हमें ऐसी environment जो है वो देखनी चाहिए, ऐसी activities के बारे में हमें सोचना चाहिए जो हमारे temperament के साथ, हमारी skills के साथ ज़्यादा relate करती हैं. And at the same time, we should concentrate on ourselves also. So there shall be a good match between person's capabilities and the type of environment where the person is working. एक और बात ये भी हुई थी कि क्या individual की personality ऐसी होती है कि that person will be more likely to experience a flow state. There are certain personality traits in the person or not which make him capable to experience flow. या इसका personality के साथ कोई ताल्लुक नहीं है. तो इसका जवाब ये था कि some researchers have indicated that there are some personality traits which determine the more likelihood of getting more involved with the work. For example, curiosity, open-mindedness, persistence, and at the same time when the person is less interested in himself. इसका ये मतलब नहीं होता कि आपको अपने बारे में as such interest नहीं है, but you are less self-centered. और आपको याद है कि हमने इस पर्सनैलिटी को क्या नाम दिया था? That is autotelic personality of a person. So that determines the greater likelihood of a flow state. And then we also talked about some longitudinal research in reference to flow. Studies have indicated that future achievements and successes sometime will determine that you are in a flow state or not. इसको दूसरे लफ्जों में हम ऐसे बयान कर सकते हैं कि फ्लो स्टेट इन फैक्ट कैन प्रिडिक्ट योर फ्यूचर परफॉर्मेंस, योर फ्यूचर अचीवमेंट्स एंड सक्सेस इन योर लाइफ. तो अगर हम स्टूडेंट्स को आज ऑब्जर्व करते हैं तो हम ये देख सकते हैं कि
जितना ज़्यादा वो काम में, अपने एकेडमिक काम में परसिस्टेंटली इन्वॉल्व होते हैं, इससे हम उनकी सक्सेस रेट अबाउट द फ्यूचर वी कैन बी एबल टू प्रेडिक्ट दैट. Another thing that we discussed in the previous lecture was that how do we know that a person is going through a flow state? जो वो काम कर रहा है, क्या वो फ्लो में कर रहा है या बस ऐसे ही चल चलाओ का काम हो रहा है? So one criterion of person's involvement with the work is the time spent on that particular work. कितना टाइम हम स्पेंड करते हैं खास एक्टिविटी में. और हम ये देखते हैं अपनी जिंदगी में कि बाज़ औक़ात कुछ कामों के दौरान हमें टाइम गुजरने का एहसास ही नहीं होता. तो दिस इज वन इंडिकेशन व्हिच विल इंडिकेट वेदर अ पर्सन is involved and engaged in that particular work or not. And then in the previous lecture, we also talked about how we can foster flow. And the answer was again that we should look for those kind of environments which are according to our capabilities. और उसके साथ साथ हमने ये भी डिस्कस किया था कि मुख्तलिफ वर्क एनवायरनमेंट्स को, एकेडमिक एनवायरनमेंट्स को किस तरीके से ऐसा बनाया जा सकता है कि फ्लो स्टेट क्रिएट हो. जैसे कि टीचर्स जो हैं, दे कैन वर्क हार्ड to make their school environment in such a way they can modify it that it is creating greater interest for the students और बच्चे जो हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व होकर काम करते हैं. क्रिएटिविटी के लिए मुनासिब माहौल पैदा किया जाना, ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना जो कि इंडिविजुअल के इंटरेस्ट को कैप्चर करती हैं, उसकी अटेंशन को कैप्चर करती हैं. एंड देन लास्टली वी टॉक्ड अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ फ्लो स्टेट. और as I have indicated before, that when we are in a flow state, it actually extends our capabilities. And moreover, we are able to invest our capabilities and skill in a proper dimension, in a proper path. हम सही जगह पर अपनी attention को, अपनी skills को invest करने के काबिल होते हैं. So this was all about previous lecture. Today we are starting a new topic and that is religiosity और spirituality. आपको याद होगा कि ये तीनों टॉपिक, the first one was mindfulness, the second was a flow state, and now the third one is religiosity or spirituality. They are related with one particular dimension that we are studying. और वो क्या है? In search of optimal experiences. How a person can reach to optimal functioning and experiences in his or her life. So these three topics are related with that. तो आज हम तीसरे और आखिरी टॉपिक का इस खास सिलसिले में मुताला करेंगे and that is religiosity या spirituality. दोनों एक चीज़ें नहीं हैं. इसके बारे में हम अभी बात करते हैं कि ये क्या फ़र्क हैं और अगर फ़र्क हैं तो किस तरह से फ़र्क हैं और अगर मिलती जुलती हैं तो किस तरह से इनमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं. So the first question is, what is religiosity or what is spirituality? A common definition is that when we are engaged in religious or spiritual activities, or when we are being spiritualistic or religious, then we in fact are searching the sacred in our life. And we want transcendence and peak experiences in our life. We are looking for some purpose and meaning in our life. तो हम जिंदगी का मकसद समझने की कोशिश करते हैं और हम किसी खास एलिमेंट के तहत, किसी फेथ के तहत अपनी जिंदगी गुजारते हैं. सो अ कॉमन डेफिनेशन इज दैट यू सर्च फॉर द सीक्रेट. और डेफिनेशन स्पिरिचुअलिटी की क्या है ये देखते हैं. फॉर एग्जांपल, एम्स एंड सैमुअल्स इन 1999 इंडिकेटेड that spirituality can be defined as the search for meaning and purpose in one's life. So you look for purpose and meaning in your life. एक और सवाल है कि when you are looking and searching for the sacred and you want to find out the real meaning and purpose of your life, then what are different pathways to go to that meaning and purpose? There are different pathways which take us to the sacred. There are different pathways which help us in finding out the real meaning and purpose of life. The first great pathway is through religion. जैसा कि मैंने पहले कहा कि spirituality और religiosity जो है वो एक ही चीज नहीं है. They are very much interrelated of course, but they are not one and same thing.
So what I was saying is that there are different pathways to search the sacred and holy things in your life, to reach to the transcendence and peak experiences in your life, and to find out the real meaning and purpose of your life. One pathway is when you are associated with some religion, चाहे वो इस्लाम है, चाहे Christianity है, चाहे Judaism है. So you are related with one particular religion. और उस religious affiliation के सहारे आप कोशिश करते हैं कि जिंदगी के मतलब को समझें और इस दुनिया में अपने रहने के मकसद को भी समझने की कोशिश करें. But there are other pathways also to reach to the spirituality, because I have indicated before that being religious does not always mean that you are also spiritual. और spiritual होने का भी ये मतलब नहीं है कि आप religion को follow करके ही spiritual हो सकते हैं, because there are some other spiritualistic movement and they are also in the Western world which have nothing to do with Christianity or some other religion. For example, आजकल उसके बारे में ecological tendencies या ecologists के बारे में बात होती है. There is one model of goddess, feminism. ये सारे जो हैं वो spiritualism की तलाश करते हैं, लेकिन they are not related with any particular religion. And then there are some other individualistic points of view that how we can become spiritualistic. कैसे हम जिंदगी के मीनिंग को समझ सकते हैं. जब मैं कुछ अरसा गुजार रही थी अमेरिका में, तो मुझे बड़ी हैरत हुई. मुख्तलिफ अखबार जो मैं रोज देखती थी उसमें जगह जगह जो था वो स्पिरिचुअल हीलर्स का जिक्र आता था. एंड इट सीम्ड दैट एवरीवन वाज क्लेमिंग टू बी अ साइकिक और अ स्पिरिचुअल पर्सन. और बाज़ औक़ात हैरत होती थी कि बहुत यंग किस्म के लोग होते थे और लड़के लड़कियां, एंड दे वुड क्लेम दैट दे आर वेरी स्पिरिचुअलिस्टिक, दे आर साइकिक, दे कैन अंडरस्टैंड अदर ह्यूमन बीइंग्स, दे कैन बी वेरी एम्पैथिक, और वो लाइफ का पर्पस जो है वो भी लोगों को ज्यादा वाज़ेह तरीके से बता सकते हैं. अब वो कितने उसमें से सही थे, कितने गलत, ये तो एक और बहस है. लेकिन कहने का मकसद ये है कि आजकल स्पेशली मैं ये कहूंगी कि वेस्टर्न वर्ल्ड में तो स्पिरिचुअलिज्म के बहुत सारे मॉडल्स पैदा हो चुके हैं, और हमारे यहाँ जो स्पिरिचुअलिज्म है दैट इज आल्सो लिंक्ड विद सूफीज्म. और सूफीज्म इज ऑब्वियसली लिंक्ड अगेन विद शरिया एंड रिलीजन, लेकिन वो उससे कुछ डिफरेंट भी है, और वहां पर ज्यादा रिलीजियस रिचुअल्स की इतनी बात नहीं होती जितनी कि दुनियावी मामलात की बात होती है. सो आवर रिलेशनशिप with other people should be emphasized more. तो बात ये है कि spiritualism और religiosity are interlinked, but they are different as well. अब इस तरह से तो हमने ये देखा कि मुख्तलिफ pathways हैं आपके लिए. आप spiritualistic कैसे हो सकते हैं, चाहे religion के जरिए हो, चाहे कोई और मेडिटेशन का तरीका इख्तियार करें, या कोई और जो आजकल दुनिया में स्पिरिचुअलिस्टिक मूवमेंट्स चल रही हैं उनमें से किसी को अडॉप्ट करें. लेकिन ये देखा गया है कि देयर इज अ ग्रेट लिंक बिटवीन मेंटल सेटिस्फैक्शन, लाइफ सेटिस्फैक्शन एंड बीइंग रिलीजियस और स्पिरिचुअलिस्टिक. Moreover, one difference which I would like to highlight here between religiosity and spirituality is that religion is one thing, it is related with one particular religion, और उसके साथ साथ आप प्रैक्टिस करते हैं उस रिलीजन को. फॉर एग्जाम्पल, यू कुड गो टू डिफरेंट वर्शिप प्लेसेस या प्रेयर प्लेसेस, जैसे कि आप मॉस्क में जाएं, चर्च में अटेंडेंस दें. लेकिन इसके बरक्स जो है स्पिरिचुअलिज्म इज रिलेटेड विद सम पर्टिकुलर फेथ एंड यू लिव योर लाइफ अकॉर्डिंग टू दैट फेथ. उसके मुताबिक आपकी जिंदगी जो है उसके बहुत सारे पहलू, आपकी जिंदगी के अंदाज जो हैं वो आपकी फेथ को रिफ्लेक्ट करते हैं. सो वी डू कंक्लूड हियर दैट स्पिरिचुअलिज्म एंड रिलीजियोसिटी आर वेरी मच रिलेटेड, बट दे आर डिफरेंट एज वेल. इन VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ्स, VIA क्लासिफिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ की बहुत दफा बात हो चुकी है, और this scale was constructed, in fact, a group of scales was constructed by Peterson and Seligman. They pointed out that 75% of people considered them both religious and spiritual. So they have lumped this concept of spiritualism and religiosity
together. एक और सवाल इस तमाम बहस के बाद उभरता है कि then what is the purpose of spiritual striving? हम क्यों करते हैं ये सारी spiritual struggle, कोशिश? इसका क्या मकसद है? Let's see a slide through which we will try to explain this concept. One thing is that personal goals are associated with ultimate purpose. So whenever we are performing some task and we have a particular goal, तो जब भी हम कोई काम करते हैं, when people want to become spiritualistic, want to become religious, it is related with some ultimate goal. जैसे इस्लाम में अल्टीमेट गोल है, चाहे आपकी दुनियावी जितनी भी गोल्स हो, आपने इम्तिहान पास करना है, आपने अच्छी नौकरी हासिल करनी है, आपने कोई और दुनियावी काम करना है, लेकिन एक अल्टीमेट गोल होती है. एंड व्हाट इज दैट अल्टीमेट गोल? दैट वी वांट टू बिकम क्लोज टू गॉड. और उसके साथ साथ हमने आखिरत का अपना सामान भी यहीं पर तैयार करना होता है. सो देयर इज वन अल्टीमेट गोल दैट वी शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर द लाइफ हियर आफ्टर. इसी तरीके से बाकी मज़ाहब जो हैं उनकी भी एक अल्टीमेट गोल है. और अगर आप मजहब को परे रख दें और सिर्फ स्पिरिचुअलिज्म की बात करें तो स्पिरिचुअलिज्म का भी एक गोल है. सो इट इज सेट अकॉर्डिंग टू सम पर्टिकुलर एंड अल्टीमेट गोल, नॉट द नियर फ्यूचर गोल्स, लेकिन एक अल्टीमेट गोल होती है. एंड सेकेंडली इट इज रिलेटेड विद एथिक्स ऑफ लाइफ. कोई भी आप रिलीजन का मुताला कर लें, किसी भी आप स्पिरिचुअलिस्टिक मूवमेंट की बात कर लें, उसके सर्टेन कोड ऑफ कॉन्डक्ट और एथिक्स होते हैं जिनके मुताबिक आपको जिंदगी गुजारनी होती है. द थर्ड फैक्टर इज रिकॉग्निशन ऑफ ट्रांसेंडेंस. एवरी कल्चर हैज कॉन्सेप्ट ऑफ डिवाइन, अल्टीमेट एंड ट्रांसेंडेंस फोर्स. हर कल्चर में ये कॉन्सेप्ट है और हर रिलीजन में है और स्पिरिचुअलिज्म में भी है कि वी आर रिलेटेड विद सम अल्टीमेट फोर्स एंड वी वांट टू हैव पीक एक्सपीरियंस इन आवर लाइफ. और वो पीक एक्सपीरियंस जो है वो हमें क्या बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ दिस लाइफ? सो दीज आर द आंसर्स टू द क्वेश्चन दैट व्हाई डू वी स्ट्राइव फॉर गेटिंग ट्रांसेंडेंस इन दिस लाइफ, या फिर हम क्यों कोशिश करते हैं कि हम रिलीजियस हों या स्पिरिचुअल हों. एक और बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल स्पिरिचुअलिटी और रिलीजियोसिटी से रिलेटेड है, वो ये है कि how many people are religious in this world? Although people do complain कि in this modern competitive world which is characterized by scientific revolutions, people have become less religious. लेकिन उसके बावजूद ये भी देखने में आया है कि लोग जोक तरजोक जो हैं वो मुख्तलिफ, जैसे कि इस्लाम में शामिल हो रहे हैं और मजहब के बारे में भी उनका इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ गया है. और मस्जिदें भी क्या खाली तो नहीं हो गई, बावजूद इसके कि हम ये कहते हैं कि अब लोग कम मजहबी हैं और इसी वजह से उनकी जिंदगी में बेचैनी है, सुकून नहीं है. लेकिन उसके साथ साथ ये देखें कि रमजान के महीने में तकरीबन हर कोई रोजे रख रहा होता है, कम से कम पाकिस्तान में, और उसके अलावा मस्जिदें जो हैं वो हमेशा भरी हुई होती हैं. और लोग ह्यूमन वेलफेयर के काम भी हर दौर में करते रहे हैं और आजकल भी करते हैं. तो एक सवाल ये उभरता है कि क्या लोग अब ज्यादा मजहबी हैं या पहले ज्यादा मजहबी थे? तो ज्यादातर लोग तो ये कहते हैं कि बस मजहबी रुझानात कम हो रहे हैं. लेकिन जनरली अगर हम इस चीज का कंपैरिजन ना करें कि पहले लोग ज्यादा रिलीजियस थे या अब ज्यादा रिलीजियस हैं, और सिर्फ ये देखें कि जनरली हाउ मेनी पीपल आर रिलीजियस, तो इसकी मिसाल मैं आपको अपनी 2 स्टडीज से दूंगी. वन स्टडी वाज कंडक्टेड विद पीपल to know about their death anxiety, how much afraid they are when you think about their impending death, their approaching death. और उसमें हमने ये देखना था कि what is the connection between religiosity and death anxiety. तो ऑब्वियसली हमें डेथ एंजाइटी का एक इंस्ट्रूमेंट यूज करना था और उसके साथ साथ हमने रिलीजियोसिटी मेजर करने के लिए भी एक इंस्ट्रूमेंट यूज किया. अब उसमें प्रॉब्लम ये हुई कि जब हमने डेटा एनालिसिस शुरू किया तो हमने ये देखना था कि जो कम रिलीजियस हैं या ज्यादा रिलीजियस हैं, हाउ मच दे आर डिफरेंट
as far as death anxiety is concerned. तो हमें वहां पे डेटा एनालिसिस में एक प्रॉब्लम हुई, और वो प्रॉब्लम ये थी कि मोर और लेस एवरीवन वाज कंसीडर्ड मॉडरेटली रिलीजियस इन पाकिस्तान. और आमतौर पे शायद आपको अंदाजा हो, अगर आपने साइकोलॉजिकल टेस्टिंग और असेसमेंट पढ़ी है तो आपको ये अंदाजा होगा कि किसी स्केल का जो मीडियन स्कोर होता है वो आमतौर पर लिया जाता है कि कट ऑफ पॉइंट के लिए, कि जो मीडियन से कम स्कोर है, लेट्स से वी कैन से दैट दीज पीपल हु एग्जिबिटेड स्कोर्स लेस देन मीडियन दे आर लेस रिलीजियस, और जिनका मीडियन से ज्यादा है वो ज्यादा रिलीजियस. लेकिन हमें प्रॉब्लम ये हुई कि 95% people had a score above median, because nobody, or at least 99% people in Pakistan, they would say in response to this question whether you believe in God, they would say yes, we believe in God. Up, it doesn't matter whether they are practicing Islam or not, that's another issue. क्योंकि वो स्केल जो थी वो दो चीजें मेजर करती थी, one was faith and the second was practice. तो हो सकता है कुछ लोग प्रैक्टिस में कम हो, लेकिन एज फॉर एज majority, in fact a vast majority of Muslims are concerned, they have a belief in God. They have a belief in God, at the same time they have a belief in life hereafter. They have a belief in all prophets and they have a belief in holy books. तो अब इतने सारे सवाल जो हैं उनका जवाब यस में ही आने की तवक्को है, और कोई 0.001% or maybe 1% will say that they do not believe in either of these questions which I just told you. तो मकसद इस सारी बहस का ये है कि many people are religious, और कम से कम पाकिस्तान में तो अगर आप रिलीजियस फेथ की बात करते हैं तो सारों की ही वो फेथ है. एज फार एज प्रैक्टिस इज कंसर्न, देन देयर आर ह्यूमन डिफरेंसेस एंड इंडिविजुअल डिफरेंसेस, लेकिन उसमें भी हम ये देखते हैं कि पाकिस्तान में एटलीस्ट प्रैक्टिस काफी है. अब ये एक और बात है कि आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं इस्लाम को, आपके बिलीफ्स भी स्ट्रांग हैं, लेकिन आपकी जिंदगी के बाकी मामलात में रिलीजन का उनसर नजर नहीं आता. दैट यू आर नॉट वेरी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग्स विद अदर पीपल एंड यू बिकम अग्रेसिव व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद अदर पीपल. और इसके साथ साथ हम कम तोलते हैं, लोगों के साथ बुरा सलूक करते हैं, बदजुबानी करते हैं, लेकिन जहां तक बज़ाहिर मेजरमेंट की बात करते हैं तो उसमें तो हम फेथ और प्रैक्टिस ही को मेजर करते हैं. सो व्हाट आई वाज सेइंग दैट इन पाकिस्तान a vast majority would be considered religious as far as faith is concerned and moderately religious as far as practice is concerned. एक और स्टडी की बात करती हूँ. Then we conducted one study which was related with personal happiness and well-being. इसका जिक्र तो काफी दफा आ चुका है. And in that study again we found that people are moderate to highly religious, and then their religiosity was linked with happiness and life satisfaction in their reports. जो वो reports उन्होंने दी अपनी happiness के बारे में, that showed that these people who were high in religiosity score, they were more happy, they were more satisfied with their life as compared to other people. ये तो थी पाकिस्तान की बात. अब हम बात करते हैं कुछ इंटरनेशनल फिगर्स की. इंटरनेशनल फिगर्स के लिए आपको एक स्लाइड दिखाती हूँ. दिस स्लाइड शोड दैट 96% ऑफ अमेरिकन्स बिलीव इन गॉड. ये वैसे थोड़ी सी हैरत हो रही है ये सुन के, क्योंकि हम तो ये समझते हैं कि वो लोग एथियस्ट होते हैं और ज्यादातर इनको यकीन नहीं होता, लेकिन खुदा की जात पर ज्यादातर लोगों को यकीन है. और बातों पर हो या ना हो, लेकिन खुदा की जात पर यकीन है. अगर वो खुदा नहीं कहेंगे तो दे कुड से दैट देयर इज एन अल्टीमेट फोर्स व्हिच इज रनिंग दिस यूनिवर्स. कम से कम इस बात पे उनको यकीन है. अब वो उसको कोई भी नाम दे दें, चाहे वो कहें देयर इज अ गॉड, देयर इज अ हायर पावर, देयर इज एन एनर्जी, कोई एनर्जी है जो इस कायनात को चला रही है, तो इट डिपेंड्स. लेकिन एक हायर सुप्रीम फोर्स इज बिलीव्ड बाय 96% of US people. अब उस सर्वे का और रिजल्ट देखिए. 21% of psychiatrists and 28% of clinical psychologists are atheists or agnostic, that they are non-believers. ये थोड़ी सी हैरत हुई मुझे भी ये स्टडी पढ़ के
कि why is it the case that psychiatrist और psychologist और mental health professionals जो हैं वो क्यों खुदा की ज़ात पे कम यकीन रखते हैं? Maybe they think that they are very objective, scientific और scientific explanations के ज़रिए मज़हब की वजाहत करते हैं या खुदा के वजूद की वजाहत करते हैं, इसीलिए इतने ज़्यादा एथियस्ट जो थे वो हमें इस ग्रुप में नज़र आते हैं as far as figures related to US people is concerned, and that study was conducted by Gallup organization in 1996. एक और स्टडी देखते हैं. 72% of Americans agree that my whole approach to life is based on my religion, while only 39% of psychiatrists and 33% of clinical psychologists accepted this statement, and that study was conducted by Bergin and Jensen in 1990. So again, we would find out that a great majority of US people would be thinking, would have this belief that religion controls their life. लेकिन यहाँ पे भी हमें वो ट्रेंड नज़र आ रहा है कि जो साइकेट्रिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनके व्यूज़ मेजॉरिटी से जो पब्लिक है यूएसए की उनसे डिफरेंट है. आगे चलते हैं और बात करते हैं कुछ इसी टॉपिक के बारे में. What is the relationship that research has shown between psychological health and religiosity, या आप ये कह लें कि spirituality और psychological health का क्या लिंक है आपस में? One study which I have just mentioned to you, that was study about death anxiety, and that was conducted in year 2002, that showed that Muslim people have more religious affiliations, और ये पता चला कि जो मुस्लिम, और इस सिलसिले में तो मैं ये कहूँगी कि पाकिस्तानी मुस्लिम्स, their death anxiety was related with religious affiliation. The more religious people were less anxious about their impending death. इसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि they were less anxious about certain dimensions of death. For example, shortness of this life, disintegration of body after death. और उसके अलावा जो ज़्यादा रिलीजियस थे उनमें ये खौफ तो पाया गया कि जो मरने के बाद पनिशमेंट होगी उसके बारे में वो सोचते थे. लेकिन अबाउट अदर डायमेंशंस, लाइक जैसे मैंने कहा कि शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, डिसइंटीग्रेशन ऑफ बॉडी एंड नॉट बीइंग एनी मोर, दे शोड लेस एंजाइटी एज फॉर एज दीज डायमेंशंस ऑफ डेथ आर कंसर्न्ड. और जनरली ये देखा गया है कि मुस्लिम ओरिएंटेशंस और उसके साथ साथ ईस्टर्न ओरिएंटेशंस इनफैक्ट प्रोवाइड अ बफर अगेंस्ट डेथ एंजाइटी. इसकी वजह यह है कि नियरली इन ऑल ईस्टर्न अप्रोचेस डेथ इज कंसिडर्ड अ ट्रांजिटरी इंसिडेंट ऑफ एन ऑनगोइंग एग्जिस्टेंस ऑफ ह्यूमन बीइंग, कि यू आर स्टिल लिविंग, और लिविंग से मुराद ये नहीं है कि आपका बॉडी इज मॉर्टल तो वो तो चला गया, लेकिन उसके साथ साथ ये जो डेथ है दैट इज जस्ट अ ट्रांजिटरी इंसिडेंट इन एन ऑनगोइंग प्रोसेस ऑफ लाइफ. तो लाइफ जो है दैट कंटिन्यूज इन लाइफ हियर आफ्टर एज वेल. और परहैप्स दिस इज द रीजन दैट दोज पीपल हु हैव दिस काइंड ऑफ ओरिएंटेशन दे आर लेस स्केयर्ड ऑफ डेथ. एक और स्टडी सब्जेक्टिव वेलबींग 2004 में ये पब्लिश हुई. That again showed that those people who were more religious, they were more happy and satisfied with their life. लेकिन एक बात मैं ये कहती जाऊँ, क्योंकि हमने पिछली दफ़ा फ्लो का टॉपिक पढ़ा था कि ये कोरिलेशन लाइफ सेटिस्फैक्शन और रिलीजियोसिटी के दरमियान मॉडरेट कोरिलेशन था, लेकिन द कोरिलेशन बिटवीन वर्क सेटिस्फैक्शन एंड लाइफ सेटिस्फैक्शन वाज वेरी हाई. तो फ्लो स्टेट का भी लिंक यहाँ पे आ जाता है कि जो लोग अपने काम से जुड़े हुए होते हैं, अपने काम में ही उनको मतलब नजर आता है, पर्पस नजर आता है, वो ज्यादा सेटिस्फाइड होते हैं लाइफ से, और रिलीजियन जो है उसमें निस्बतन कम रोल प्ले करता है. स्लाइड दोबारा दिखाती हूँ. अनदर स्टडी वाज रिलेटेड विद पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर. ये स्टडी जो है पाकिस्तान में हमने अर्थक्वेक सर्वाइवर्स के साथ की थी, और दैट स्टडी अगेन शोड that those people who are religious, and in that part of Pakistan
जहाँ पर अर्थक्वेक आया था वहाँ पे तो ज़्यादातर लोग ही मजहबी बहुत हैं, लेकिन हमने ये देखा कि उनके मजहब ने और उनकी जो स्ट्रेंथ थी मजहब की, उसने उनको बहुत एक आप अगेन कह सकते हैं कि उनको एक ऐसी स्ट्रेंथ दी थी जिनसे वो अपनी इस परेशानी पर काबू पा सकते थे. सो people who were very religious, and many of them were very religious, they in fact was taking a great strength from their religious beliefs and affiliations. और उनसे एक सवाल डायरेक्टली तो नहीं पूछा गया, लेकिन इनडायरेक्टली एक सवाल पूछा गया. अभी मैं आपको एक स्लाइड दिखाने जा रही हूँ इसी सिलसिले में, कि उनसे इनडायरेक्टली सवाल पूछा गया कि ऐसे हालात में लोग बाज़-औक़ात खुदकुशी का सोचते हैं, तो आपका क्या ख्याल है? तो उन्होंने ये कहा कि इस्लाम में तो खुदकुशी हराम है, और उन्होंने ये भी कहा कि हम अल्लाह ताला के बड़े मशकूर हैं कि हम पर इससे ज़्यादा तबाही नहीं आई. इसका मतलब ये है कि किस तरह से उनके रिलीजन से उन्हें ताकत मिल रही थी. एंड दैट इज़ व्हाई वी एडवाइज्ड counselors and mental health professionals who work with people in these kind of traumatic situations that religion can be used as a great source of strength for coping with such problems. इस स्लाइड पे मैं दिखा रही हूँ थोड़ी सी स्टेटमेंट जो बहुत से लोगों ने हमें कही इस सर्वे के दौरान, कि हम खुदकुशी कैसे कर सकते हैं, बल्कि हम कैसे सोच सकते हैं इसके बारे में. हम मुसलमान हैं और इस्लाम में मायूसी को कुफर कहा गया है और खुदकुशी को हराम. हम ऐसा करने का सोच भी नहीं सकते. खुदा ताला से उम्मीद बहुत है, वो गफ्फार और गफूर होने के साथ साथ रहमान और रहीम भी है. तो आप देखिए कि इतनी बड़ी मुश्किल आई उन पर, घर उजड़ गए, रिश्तेदार फौत हो गए, कुछ भी नहीं रहा उनके पास, बहुत सारी इंजरीज आई उनको, और उसके बावजूद वो कह रहे हैं कि खुदा तो गफूर रहीम है और बड़ा मेहरबान है. तो ये एक बहुत बड़ी कोपिंग है जो इंसान करता है इन हालात में, कि फिर भी उम्मीद का दामन जो है वो अपने हाथ से नहीं छूटता. क्योंकि अगर उम्मीद का दामन हाथ से छूट जाए तो फिर तो आप मुस्तकबिल के लिए आपके पास कुछ भी नहीं रहता. बेसरो सामान तो आप पहले ही हो चुके होते हैं. अब कुछ इसमें इंटरनेशनल रिसर्च की बात करते हैं. ये तो हमने उस रिसर्च की बात की जो पाकिस्तान में कंडक्ट हुई, एंड विच शोड अ ग्रेट रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजियोसिटी एंड mental health. Results of surveys conducted in USA and 14 European nations indicate that there is again a link between mental health and religious affiliations. इन सर्वे से हमें दो चीजों के बारे में पता चलता है. As far as the relationship with religiosity is concerned, that life satisfaction is related with two aspects of religiosity. The first is the strength of religious affiliations, and the second is frequency of attendance at the worship places or services. यानी जितना ज़्यादा आप worship places पर, जैसे हम पाकिस्तान में कह लें कि हम मस्जिदों में जाते हैं, या फिर कितनी strength है हमारी religious affiliation की, that will determine that how healthy we are as far as our mental state is concerned. और कुछ studies के बारे में देखते हैं. One study was conducted by Benson in 1992, and that showed that people who were involved in alcohol and drug abuse, they also found that their life satisfaction increased when they used religion as a source of coping for reducing these kind of problems. इसी तरीके से ये भी देखा गया है कि marital functioning could be improved if we become more religious, and that study was conducted by Mahoney et al. In 1999. और भी studies आपको नजर आ रही हैं स्लाइड पर, for example stressful life experiences and morbidity and mortality. तो ये सारी जो studies हैं उनका निचोड़ ये है कि people could solve their everyday life problems related with their faulty habits, related with human relationships, and their fears about mortality, morbidity, और फिर उसके साथ साथ उनकी जो सिर्फ fears नहीं हैं बल्कि उनकी जो disease का status है, that is actually involved with greatest religious affiliation, in that sense कि अगर आप religious होते हैं या spiritual होते हैं तो that will help in reducing your illness, उसके effects कम हो जाएंगे,
मे बी उसकी वजह ये होती है कि रिलीजन जो है वो आपको एक कंटेंटमेंट और पीस अता करता है। और बाज़ लोग तो ये भी कहते हैं कि एक्चुअली उनके फिजिकल हेल्थ प्रॉब्लम्स जो हैं उनमें भी रिलीजन बहुत हेल्प करता है। बहुत से लोगों की रिपोर्ट्स ये हैं कि फॉर एग्जांपल उन्होंने फलां सूरत पढ़ी और मजहबी तरीके से रिलीजियस हीलर से इलाज करवाया तो उनकी कोई ख़ास गिल्टी थी वो कम हो गई, वो ख़त्म हो गई। तो हमें इस तरह के बहुत से वाक़यात जो हैं वो सुनने को मिलते हैं। एक और रिसर्च है जिसमें लोगों से पूछा गया कि प्रेयर जो है वो कैसे उनके प्रॉब्लम्स हल करती है। तो 80% ऑफ पीपल रिपोर्टेड दैट prayer in fact is related with reduction in their everyday life problems. तो हमें इन तमाम रिसर्चों से ये इंडिकेशन मिलती है कि people with the strength of their religious affiliations can reduce their problems, they can increase their mental and psychological health और उसके साथ साथ उनके ह्यूमन रिलेशनशिप्स जो हैं वो भी बेहतर हो जाते हैं। अब एक और बात करते हैं कि when we talk about religiosity or spirituality, then it is linked with two dimensions. और वो dimensions हैं extrinsic और intrinsic religiosity. Researchers have also investigated the relationship between life satisfaction and whether the person is intrinsically religious or extrinsically religious. जब हम एक्सट्रिंसिकली रिलीजियस की बात करते हैं तो दैट इज रिलेटेड इन प्योर फॉर्म विद रिलीजियोसिटी। और रिलीजियोसिटी क्या है कि आप वर्शिप प्लेसेस अटेंड करते हैं, आप जो आपका मजहब कहता है उसके मुताबिक जिंदगी गुजारते हैं। इंट्रिंसिक एफिलिएशंस ये क्या है कि आप ट्रू बिलीवर्स हैं और आपका इस चीज से कोई ताल्लुक नहीं है या कम ताल्लुक है कि वेदर बाय बीइंग रिलीजियस you will get some social or religious rewards or not. तो बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि intrinsic religiosity is related with more with spirituality और extrinsic religiosity जो है वो that is linked with your behavior that shows that you are religious. तो एक रिसर्च का यहाँ पर जिक्र करना चाहूंगी. That study was conducted by Vicky Genia in 1996 and she used a number of measurements for measuring a person's extrinsic and intrinsic faith, and at the same time they also measured a person's affective state like depression or well-being, social desirability etc. और जो scales use की थी वो यहाँ पर mention है slide में. Multiple religiosity measures were used, spiritual well-being measure was used और उसके साथ Beck depression inventory BDI, रोजनबर्ग की सेल्फ स्टीम स्केल भी यूज की गई थी और उसके साथ साथ सोशल डिजायरेबिलिटी स्केल. उसमें मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं उनके दरमियान कोरिलेशन और कनेक्शन देखना मकसद था. अब रिजल्ट्स क्या बताते हैं ये देखते हैं दोबारा स्लाइड पर. रिजल्ट्स शोड दैट दोज पीपल हु हैड इंट्रिंसिक फेथ, देयर इंट्रिंसिक फेथ लेड देम टू हैव लेस लाइफ डिस्ट्रेस and greater life satisfaction. So those people who were intrinsically religious or who had intrinsic faith, they were less distressed and they were more satisfied with their life. So the researcher explained that when you are intrinsically religious, then you feel more close to God. और जो कुछ आप करते हैं असल में वो आपके अंदर से निकलता है जो आप करना चाहते हैं. एक मैंने रिलीजियोसिटी और एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक एलिमेंट्स पर जो रिलीजियोसिटी की स्केल है वो देखी है. उसके कुछ सवालों का जिक्र आपसे करना चाहूंगी. जैसे एक्सट्रिंसिक रिलीजियोसिटी को मेजर करने के कुछ क्वेश्चंस हो सकते हैं कि मैं रोज़ा इसलिए रखता हूँ क्योंकि इस्लाम ये कहता है कि रोज़ा रखो. मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूँ क्योंकि नमाज पढ़ने का कहा गया है. अब ये बात भी सही है कि आप जो कुछ इस्लाम कह रहा है आप उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं. लेकिन इंट्रिंसिक फेथ क्या है? इन्हीं सवालों को और अंदाज से अगर पूछा जाए कि मैं रोजा इसलिए रखता हूं कि मुझे रोजा रखना बहुत अच्छा लगता है. मैं नमाज इसलिए पढ़ता हूं क्योंकि मुझे नमाज में बहुत सुकून मिलता है. So it means that you are doing that particular act
because you have a very strong faith in that. And you are not doing it because you have been asked. और अगर आप नहीं करेंगे तो आपको गुनाह मिलेगा. और ज़्यादातर लोग जो हैं, हम वो इसीलिए ये तमाम काम करते हैं कि हमें ये डर लगता है कि फिर हमें आखिरत में पनिशमेंट मिलेगी. तो इंट्रिंसिक faith is more related with life satisfaction and happiness. और ये इस स्टडी के अलावा और भी बहुत स्टडी से पता चलता है. और कुछ बात करते हैं रिलीजियोसिटी और लाइफ सेटिस्फेक्शन के बारे में, और ये देखते हैं कि कैसे रिसर्च जो है वो इसके दरमियान ताल्लुक को साबित करती है. One study was conducted by Huntsberg in 1985, and that study showed that religiosity deepens with age. And that study was conducted with physicians, and it showed that physicians incorporate their faith in their patients. अब इसमें दो चीजें हैं स्टडी में. One thing was that people who are religious when they are children. So as child, a person is religious. When then person becomes mature, so there is a chance that his religiosity will be increased, enhanced. अब अगर बचपन से religious हैं, तो ज्यादा चांस ये है कि बड़े होकर और ज्यादा उसकी डेप्थ जो है वो बढ़ जाएगी. एक तो ये बात पता चली इस रिसर्च से. दूसरी बात, चूंकि ये रिसर्च जो थी वो फिजिशियंस के साथ कंडक्ट की गई थी, तो इट शोड व्हेन द फिजिशियन इज रिलीजियस, तो दैट रिलीजियसिटी ऑफ द फिजिशियन आल्सो अफेक्ट्स द मेंटल स्टेट ऑफ द पेशेंट. किस तरह से? बिकॉज religious physicians are able to enhance confidence of their patients, which helps them in recovery. Moreover, they are able to inculcate positive morale in the patient. तो इन तमाम चीज़ों से जो है वो पेशेंट की मेंटल हेल्थ पर भी बहुत अच्छा असर पड़ता है. देखिए, एक शख्स की रिलीजियोसिटी या स्पिरिचुअलिटी से बाकी लोग कैसे मुस्तफीद होते हैं. एक और रिसर्च देखते हैं. That research was conducted by Markowitz and colleagues in 1987, and it showed that older people become close to God, and attendance at church services tends to increase as far as older people are concerned. So this shows that religiosity increases with age, and the reason is that people are more aware of their approaching death. So when they become more aware, तो उसके साथ साथ फिर उनको खुदा के साथ अपना कनेक्शन जो है उनका स्ट्रॉन्ग हो जाता है. और उसके साथ साथ ये देखा गया कि देयर अटेंडेंस एट चर्च, क्योंकि ये स्टडी जो थी वेस्ट में हुई, देयर अटेंडेंस एट चर्च इंक्रीज्ड. और यहाँ पर ये बताया जाता है कि इट्स नॉट एसेंशियल कि यू वुड बी इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड. अगर आप एक्सट्रिंसिकली मोटिवेटेड भी हैं और उसके साथ साथ आप जो है वो अपनी रिलीजियस रिचुअल्स परफॉर्म करते हैं, तो उसके साथ आपकी लाइफ सेटिस्फेक्शन का बहुत गहरा ताल्लुक बनता है. अब एक और स्टडी जो इन पहली दोनों स्टडी से थोड़ी डिफरेंट है उसके बारे में बात करते हैं. दैट स्टडी वाज कंडक्टेड बाय रिचर्ड्स इन 1991, एंड दैट शोड दैट रिलेशन ऑफ रिलीजियसनेस, पर्सनैलिटी एंड मेंटल हेल्थ इज क्वाइट स्ट्रॉन्ग, एंड दैट स्टडी वाज कंडक्टेड इन अ कॉलेज स्टूडेंट सैंपल. ये स्टडी डिफरेंट कैसे है? One thing, it was conducted with college students, and the other thing, it showed that when students enter into college, then that is the time when they are individuating from parents. और बाज़-औक़ात ये होता है कि when you are individuating from your family, और अब ये ज़रूरी नहीं है कि पाकिस्तान में भी this is the time when they are individuating from their parents, कि बाहर की बात कर रहे हैं, then that is the time when they feel very independent, happy in one way, but at the same time it can increase loneliness and anxiety in the person. क्योंकि जिम्मेदारी बहुत है अब जो खुद ही उठानी है. So they found out that those people, those students who were more religious, they were less anxious on this separation from parents. और उसके साथ साथ वो इतना डिटैच्ड भी महसूस नहीं करते थे अपने आप को अपने पेरेंट्स के साथ when they entered in the college. So the conclusion of these studies is that when people become mature, they become more religious. Their religious rituals are also increased. And if people are religious,
then they are able to inculcate these religious beliefs and they are going to influence by their religious beliefs to other people. And it also showed that when people become religious, then their loneliness is decreased and that also adds to their happiness. अब हमने इतनी बात की कि हेल्थ का बहुत ताल्लुक है रिलीजियोसिटी के साथ, तो अब ये देखते हैं कि ये क्यों इतना गहरा ताल्लुक है, क्यों ये इंटरनेशनल वेस्टर्न रिसर्चेस और पाकिस्तानी ईस्टर्न रिसर्चेस सारी ये शो करती हैं कि आपकी मेंटल और इवन फिजिकल हेल्थ इंप्रूव हो जाती है इफ यू आर रिलीजियस और स्पिरिचुअल. एक स्लाइड दिखाती हूँ. Religious support and affiliation contributes toward personal well-being by providing a sense of meaning and purpose in life. So you know what is the purpose of your life. For example, a Muslim knows कि why he has been sent into this world. और ये जो दुनिया है, इसको बनाने का क्या मकसद था? और हमारी जिंदगी का क्या मकसद है और इसका एंड कहाँ पर होगा? So they have answers to these questions, और ये आप कह सकते हैं कि they have answers to major dilemmas in life. उसके बारे में हमें बहुत सारे सवालात का जवाब जो है वो कुरान से, हदीस से और मजहब से मिल जाता है. इसकी वजह से लोग मेंटली और फिजिकली जो हैं वो निस्बतन वो लोग हेल्दी होते हैं जो कि ज़्यादा रिलीजियस होते हैं. एक और स्लाइड दिखाती हूँ जिसमें ये देखते हैं कैसे इन पेशेंट्स जो हैं उनका क्या ख्याल है कि उनको रिलीजियस होना चाहिए और रिलीजन को उनकी ट्रीटमेंट में इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं करना चाहिए. सो दैट स्टडी वाज कंडक्टेड विद 2003 इन पेशेंट्स. और रिजल्ट्स क्या कहते हैं ये देखते हैं. 94% of inpatients believe spiritual health to be as important as physical well-being. 77% wanted spiritual issues to be considered in their care. As compared to that, 68% reported no discussion of their religious beliefs by physicians. So more people believed that religion should play a part in their care and treatment. एक और मिलती जुलती study which was conducted by Fitchett and colleagues in 1997. That study showed that 80% of psychiatric patients and 88% of medical inpatients expressed the need of prayer. And that study was conducted with 51 psychiatric patients and 50 medical patients. Physical disorders थे उनको और बाकी 51% को कोई psychiatric problems थे. So a great majority showed that they were interested in performing their prayer और उन्होंने वो ये समझते थे कि prayer का उनकी health पर असर पड़ेगा whether it is physical or mental illness. और देखते हैं कि क्या हमें लिंक मिलता है पेशेंट्स के बारे में और रिलीजन और मेंटल हेल्थ के बारे में. In addition, 65% of psychiatric patients and 66% of medical patients expressed a need for a visit from a holy person to pray with them. So again, majority of medical and psychiatric patients believed that they would like some holy person to visit them because it was related again with their another belief. और वो क्या था कि there is a link between religious rituals and recovery in different kind of illnesses. So this was all about today's lecture. अब हम रिव्यू करते हैं आज हमने जो कुछ पढ़ा है. First of all, we talked about a link between religiosity and spirituality. And we discussed that religiosity and spirituality have many things in common. And in fact, 75% of people considered them both religious and spiritual. But they are also different. In that dimension, that people who are religious, they perform some religious rituals. And also, they are connected with some particular religion जिसके मुताबिक वो अपनी जिंदगी गुजारते हैं. इसके बरक्स those people who are spiritualistic, they have a particular faith in their life और वो अपनी जिंदगी और अपनी जिंदगी का जो सारा उनका
दारोमदार होता है कि किस तरह उन्होंने गुजारनी है, वो उस फेथ पर डिपेंड करता है. And then we also talked about different pathways to searching the sacred in your life. One obvious pathway is that you are connected with some religion. और वो religion कोई भी हो सकता है. Another pathway is that you are being spiritual. और उसके साथ साथ मैंने इस बात को भी डिस्कस किया था कि आजकल दुनिया में वेस्ट में भी बहुत से स्पिरिचुअलिज्म के मॉडल्स आ गए हैं. तो आप किसी भी तरीके से मेडिटेशन से, किसी स्पिरिचुअल एक्ट के जरिए, किसी रिलीजियस एफिलिएशन के सहारे जो हैं, आप ये कोशिश कर सकते हैं कि यू कुड बी एबल टू फाइंड real meaning and purpose of your life. And then we also talked about how many people are religious. And we found out that in Pakistan and in other countries, research has shown that in fact a vast majority of people are religious. As far as faith is concerned, more than 90% in USA also think that they consider themselves religious. और हमने ये भी देखा कि most of the people have a belief in the existence of some energy, some force. If it is not God, तो God की बात नहीं भी करते तो किसी force पर जो ये सारी universe को चला रही है उस पर उनका belief है. And then we also talked about a link between mental, physical health and religiosity. And we found out that this correlation has not only been indicated in Eastern एंड एशियन कंट्रीज, लेकिन ये लिंक जो है हमें इंटरनेशनल रिसर्च में भी बहुत स्ट्रांगली नजर आता है. एंड देन वी आल्सो डिस्कस दैट इन पेशेंट्स वेदर दे आर सफरिंग फ्रॉम साइकेट्रिक इलनेसेस और फ्रॉम फिजिकल इलनेसेस, दे डू बिलीव दैट प्रेयर कुड बी एबल टू रिड्यूस देयर प्रॉब्लम. और उसके साथ साथ ये भी बहुत सारे हमने ये देखा कि जो साइकेट्रिस्ट हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका थोड़ा सा जो है मजहब के बारे में कम है रुझान. और हमने ये देखा कि साइकेट्रिस्ट, क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट फॉर सम रीजन मे बी दैट दे फाइंड साइंटिफिक एक्सप्लेनेशंस ऑफ रिलीजियस एलिमेंट्स, तो इसकी वजह से वो कम रिलीजियस हैं एज कंपेयर टू जनरल पॉपुलेशंस. और देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट intrinsic or extrinsic faith, and we found out that those people who have intrinsic faith, they are more happy and satisfied in their life. So this was all about today's lecture. अगले लेक्चर में इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी. अल्लाह हाफिज.